Good evening, everyone. Good evening, Sadeep. Hello. Good evening, Uma. Good evening, Narendra ji. Good to have you all here again. Good evening, Raja. Good evening, Krimesh. Guys, is my screen audible and am I audible to you? Please give me a thumbs up. Thank you, Krimesh. Maybe okay. Yes, yes, can see and hear. Great. We will wait for another 2-3 minutes for rest of our friends to join in, and then we'll start. Today we are going to talk about noiseless charting. And before I go there, कैसा रहा आज का दिन? How was the trading session for you guys? Market तो अच्छा खासा एक अब में up move दे रहा है, तो पैसा बना नहीं बना क्या हुआ आज? Great, Rakesh ji saying good profitable days. Congratulations. Krimesh के लिए भी good रहा है. Totally choppy in range, okay? From last 2-3 days, hammer day. Okay, okay. ठीक है. अरे वाह, congratulations, Basavraj. Good profit, he says. कितनों को लगता है कि निफ्टी ने बॉटम बना लिया यहाँ पे एंड वी विल बी मूविंग अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ? ग्रेट राजा. आई एम होपिंग गुड डेज कंटिन्यू. किसी को मार्केट में बैड डेज नहीं चाहिए. गुड डेज हैव टू कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफ अस. So do you think market ने bottom बना लिया है? यहाँ से we are heading onwards and upwards only. Will move up. Narendra ji is saying, oh, nice. Vasavraj is saying no. Okay, इनको नहीं लग रहा है. Great. Let's have mixed bag of opinions. And I would suggest everyone to be participative. क्योंकि आज का जो topic है that is also a little interesting where a lot of things we will learn कि कैसे हम लोग बहुत सारा नॉइज अपनी चार्ट से निकाल सकते हैं. ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड अफेयर्स. ओके, ऑल राइट. 117 200 closing a day, we can go ahead. All right, okay, that's valid. In fact,
निफ्टी का काफी हद तक का व्यू यही बन रहा है, बहुत सारे लोगों का भी व्यू यही बन रहा है. Overall option data is also suggestive that 17,200 has to be taken up decisively, क्योंकि वहां पे अगर हम overall देख रहे हैं तो we have about 76.6 lakh of OI open there. So calls में अच्छा खासा OI open है वहां पे. And overall intraday में अभी फिलहाल जो current down move हुआ था, in our first session we had learned about Fibonacci. तो Fibonacci के 61.8 लेवल से ऊपर हम 73% के पास आज हमने क्लोज करा है. So and the next 100% of the up move comes up at 17,211. So yes, 17,200 is going to be a very, very specific level on Nifty that we should be looking up at, right? I guess it's 4:05 now, and most of us have joined in. So we will start with today's session. What we are going to see today is about noiseless charting. Point and figure charting जिसको बोलते हैं. You can clearly make out X's and O's is what is used for representation of this chart. काफी लोगों ने देखा भी होगा, सुना होगा इसके बारे में, right? So can anyone tell me, मतलब किसने किसने point and figure use करा है, या फिर you have just heard of it, or it's going to be totally new for you guys? Just give me some heads up over here. How many of you know about it? How many of you have heard? किसने किसने use भी करा है तो well and good. New to me, only heard new. Wow, all right, awesome. So बहुत मजा आने वाला है. Completely new topic for all of you. So आज कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा. बहुत सारी doubts. I'm expecting जितनी questions हो, please put it across everyone. के जितनी questions होंगी, we will try to answer. Because अगर आप investment करते हो, if you are towards long-term investment, then noiseless charting is the best method to do it. बहुत अलग अलग टाइप की noiseless charting होती है, right? उसमें से point and figure is one type of a noiseless chart. Yes, Ketan, we will see कि candles को noiseless chart में point and figure में convert करना जरूरी क्यों है? What is the best thing about it? But सबसे पहले can we have quickly written up into the chat box, what do you understand by the word noise? What is noise for you? मतलब स्टॉक मार्केट में अगर हम नॉइज की बात करते हैं तो वो क्या होता है? Up and down, volatility, false signal, confusion, SL hunting, irrelevant data. Very nice. Irrelevant data. Frequent. Yes, very nice. So काफी हद तक जब हम noiseless charting की बात करते हैं तो it's first noise, right? Noise, the word in itself can be very uncomforting. बहुत जब noise की बात करते हैं तो चाहे वो noise pollution की बात क्यों ना कर रहे हो, the word is very discomforting. And the same thing happens in market also. The kind of price fluctuations, the volatility that we have, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सी एक सिचुएशन हो जाती है ऑन द शॉर्ट टर्म. अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एक क्लियर कट चार्ट चाहिए कि भाई क्या हो रहा है बता दीजिए, सो वी शुड गो लॉन्ग और वी शुड गो शॉर्ट. So noiseless charting is one of those methods. बहुत सारे noiseless charts होते हैं. We have Renko, we have Heiken Ashi, we have point and figure. So आज हम specifically point and figure की बात करने वाले हैं. How this charts are useful, क्या क्या इसके अंदर कवर होता है. सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन, जैसे हमें क्वेश्चन आए कि कैंडल को इसके अंदर कन्वर्ट क्यों करना है, राइट? सो दोज आर द थिंग्स व्हिच वी विल बी लुकिंग अप एट टुडे. And it is very easy to remove market fluctuations out of this chart. You can remove large block deals से जो effects आते हैं वो आप इसमें से निकाल सकते हो. Artificial bubbles जो बहुत सारे group trading या फिर cartel trading होती है उसकी जो artificial bubbles होती है वो आप इस चीज में से निकाल सकते हो. So you are basically removing all the unwanted noise when you are looking up at creating an investment opportunity for yourself, right?
Is this chart real time? Yes, रविंद्र जी, there are options. जैसे ट्रेडिंग व्यू जो फ्री प्लेटफॉर्म है वहां पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 30 मिनट्स पे भी इसको कर सकते हो, डेली पे भी कर सकते हो, वीकली पे भी कर सकते हो. बट दीज चार्ट्स आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग ऑफ द डेटा पॉइंट. अब हम जाएंगे जब वी विल गो टू ट्रेडिंग व्यू. ज्यादातर आज का सेशन will be more of looking at the charts practically कि कैसे बना है, क्यों बना है, और इसमें दो important points होते हैं, box और reversal, तो वो कैसे decide करी जाती है and all of that. But जब मैं उस सब में जाऊं उससे पहले, so these are the points that we are going to cover today. We are going to cover today first what is point and figure charting, के होता क्या है. दूसरा हम लोग आज cover करेंगे how is point and figure chart constructed, इसकी construction कैसे होती है. Box size or box reversal are two very important terms that you should be knowing when it comes to point and figure charting. तो वो आपको पता होना चाहिए. And then patterns, इसके अंदर भी patterns होती है. So patterns इसके अंदर कैसे ड्रॉ करी जाती है, कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है. एंड वी विल ऑल्सो सी कि अगर पैटर्न्स आपको समझ में नहीं आ रही है तो विच इज अ क्लियर कट डिफाइंड वे ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग. इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत भी होती है कि ट्रेंड लाइन हम कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट पे या लाइन चार्ट पे तो कैसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं. बट पॉइंट एंड फिगर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि ट्रेंड लाइंस पॉइंट एंड फिगर में हमेशा 45 डिग्रीज की एंगल पे ही बननी चाहिए. देन इट इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन. तो इसका एक ये रूल है, तो डिफाइंड रूल्स है इसके अंदर पॉइंट एंड फिगर के अंदर. तो बहुत ही इजी हो जाता है व्हेन यू हैव डिफाइंड रूल्स फॉर एवरीथिंग. इट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट, राइट. Or last but not the least, very, very important when we are going through the whole session learning about a chart, we will see how do we calculate targets and stop losses. बहुत जरूरी होगा कि हम इसके अंदर target और stop loss कैसे calculate करते हैं उसको समझेंगे, right? So this calculation of target and stop loss and also patterns के लिए I would request everyone कि आपका जो भी favorite stock है जिसके बारे में भी आपको देखना है, करना है, वो सारे स्टॉक के नाम्स आप अपने दिमाग में रखिए. अभी फिलहाल चैट बॉक्स में नहीं डालिएगा क्योंकि क्या होगा, मिस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते रहते हैं उसके हिसाब से. तो आप अपना सोच के रखिए कि भाई मुझे ये 3-4 स्टॉक्स है या ये 1-2 स्टॉक्स है जिसको देखना है. तो कीप दैट इन योर माइंड. वी विल सी दोज व्हेन वी टेक अप patterns and targets and stop losses, right? Now what is point and figure chart? चलते हैं सबसे पहले what is a point and figure chart. So point and figure chart in technical analysis, however, is based on the principle of plotting price in columns consisting of X and O's. काफी लोगों ने ऐसी चार्ट देखी होगी जहां पे X और O बनाए जाते हैं, तो उसी के बेसिस पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट की कंस्ट्रक्शन होती है. Here you must remember कि जो X होते हैं those are increasing prices. जब आपके prices increase होते हैं they are bullish or moving up, you write down X's. And whenever there are O's means declining prices, zero होते जा रहा है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो कि zero की तरफ जा रहा है तो वो O से define होता है. So X is bullish moves and O's are your bearish move. Now some technical analysts also believe and I also believe कि ये ज्यादातर long term investment के लिए बहुत ही simple है क्योंकि इसके अंदर आपको strong entry और exit points मिल जाते हैं. There are clear defined rules for entries and exits, for the patterns, for the trend lines, everything. So according to me, this is something if you are looking at investments, आप definitely point and figure chart को use कर सकते हो. इसके अंदर returns भी हम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि returns भी काफी amplified करके दिखाए जाते हैं. मतलब amplified करके भी नहीं, आप ज्यादा वो जो बोलते हैं ना कि एक noise होता है, जैसे चार्ट पे हमने मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लिया तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है उसके अंदर. The same thing can be taken off with the help of point and figure chart. इसके अंदर आपको कोई भी और additional indicators डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, right? So that is why these are for long term investment. बहुत सारी इसके अंदर जो irregularities होती है मार्केट की वो सब इसके अंदर से निकल जाती है. तो आपको बहुत ही एक क्लियर पिक्चर पता चल जाता है, बुलिश चल रहे हैं, बेयरिश चल रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज कि हम क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं,
These charts are called as unidimensional chart. Unidimensional मतलब multi-dimensional होता है, 3D 2-dimensional होता है, 3-dimensional होता है, multi-dimensional होता है. These are unidimensional क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइस प्लॉट करा जाता है. तो एक ही पर्सपेक्टिव, जो प्राइस हम बोलते हैं कि भाव भगवान है, राइट? तो उसी के बेसिस पे सिर्फ पॉइंट एंड फिगर बना जाता है. इट्स यूनिडायमेंशनल, ज्यादा चीजों को इसके अंदर इकट्ठा नहीं करा जाता. They plot the movement of the prices without considering the parameter of time. तो जैसे मैंने बोला, प्राइसेस निकाल देते हैं, टाइम डाल देते हैं, एंड इट्स वेरी स्लो. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी फ्लक्चुएशंस मिलेगी, बहुत इसके अंदर आप नॉइज निकल गया सब. तो इट इज वेरी स्लो. इट इज नाइस टू लुक एट दीज चार्ट्स. राइट नाउ हाउ आर दे कंस्ट्रक्टेड? सो इसके लिए कोई भी हम there is no PPT work. We will directly go and see how it is constructed, and we will see how the box size or reversals and all of these work. अभी तक किसी सबको समझ में आया that why are we going to point and figure? Why are we not taking up any other chart right now over here? What is the main reason for this thing? Please give me a thumbs up quickly. Okay, Sudeep got it. बाकी सबको समझ में आ रहा है कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? I will keep on asking this because नया topic है, सबके लिए ही नया है. So we will be like having a lot of these reconfirmations happening on and off. First time seeing, got it, yes, thumbs up. All right, thumbs up. Let's go ahead. तो इसके लिए बहुत ही simple सा हम यहाँ पे ले लेंगे. This is how your point and figure chart is. ठीक है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे निफ्टी लिया हुआ है. ओके, इसको हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं. सबसे पहले एक्सेस और ओस को समझ लीजिए कि आपके जो एक्स होते हैं, है ना, those एक्सेस are nothing but your bullish move, your o's are your bearish move, जैसे हमने बात करी. अब there are two ways to construct these point and figure chart. ओके, एक है ट्रेडिशनल मेथड के जहाँ पे देयर इज अ ट्रेडिशनल वे के एक बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करा जाता है और रखा जाता है. दूसरा इसके अंदर जो मेथड है, राइट, वो है यहाँ पे एटीआर. एटीआर क्या होता है? कैन एनीवन क्विकली गिव मी अ हेड्स अप, व्हाट इज एटीआर? एवरेज यूज क्या होता है इसका, क्या बताता है? ये रेंज बताता है, राइट, वोलेटिलिटी बताता है. तो अगर हमने एटीआर के बेसिस पे इसको कंस्ट्रक्ट करा है, मतलब हम जो प्राइस की वोलेटिलिटी है उसको भी इसके अंदर थोड़ा बहुत कंसिडर कर रहे हैं, राइट? यस, एटीआर एंड yes, absolutely correct. Yes, Datesh, your chats are visible to me. Don't worry, you can always just put down whatever your questions are. Your chats are visible, right? Baki Rakesh ji, ATR, Sudeep ATR, Uma ATR. Yes, correct. So अब सबको पता है, right? So सबको पता है कि ATR क्या होता है. तो दो मेथड है इसकी कैलकुलेशन की, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है ATR मेथड. सबसे पहले इसको कहाँ से लाना है? So you can just use TradingView. I like to use TradingView for this one. So you will have to go over here. ऊपर जहाँ पे चार्ट्स की ऑप्शन दी होती है, तो यहाँ पे सारे चार्ट्स है, रेंज है, कागी है, लाइन ब्रेक है, रेनको, हैकिनाशी एंड ऑल. हमने अभी क्या लिया है? पॉइंट एंड फिगर. So you have to go and select point and figure. Point and figure, you click on this, right? यहाँ पे 3 dots मिलेगी, वहां पे जाना है. सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेगा. आपको एक मिलेगा एटीआर का ऑप्शन, एक मिलेगा ट्रेडिशनल का ऑप्शन. सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल देखते हैं. हाँ, दो टाइप के होती है. ट्रेडिशनल का क्या होता है? एक बॉक्स साइज होता है और एक रिवर्सल अमाउंट. अब अगर मैं बॉक्स साइज और रिवर्सल पे जाने से पहले एक आपको यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करने को बोलूं, सो यू विल बी एबल टू डू इट. सबसे पहले तो इसकी जो साइड स्केल है ना यहाँ पे,
which you see over here, आपको दिख रहा है 20 के पॉइंट्स के डिफरेंस पे है ना? और यहाँ पे ये जो x और o है, they are reflecting this 1 point. अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं, right? This is your x, this is your o. इसको यहाँ तक लेके आते हैं अपन. तो क्या मिला हमें ये कि एक x और o यहाँ पे जो इसका वैल्यू कुछ भी प्लॉट करा हो, एज ऑफ नाउ कुछ भी प्लॉट करा हो, तो हमें रेंज कितनी मिल रही है? 510 से लेके 490, 20 पॉइंट्स का रेंज मिला, राइट? अब ये 20 कहाँ से आया? Yes, I can definitely wait a minute. Meanwhile, I am explaining. Please, if you want to add, you can go ahead and add this indicator. It's not an indicator. ऊपर से चार्ट टाइप है, चार्ट टाइप को आपको ऐड करना है, ठीक है? Now 20 पॉइंट्स का बॉक्स साइज मिला. हम इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा है, 20,3. तो ये जो 20 था, 20 आपको समझ में आया क्या है? वो बॉक्स जो बन रहा है ना, द स्क्वायर बॉक्स फॉर ईच एक्स एंड ओ, उसका रेंज इज 20 पॉइंट्स, तो इसीलिए वहां पे हमने 20 है, राइट? दूसरा इसके अंदर अगर आप अब हम चले जाते हैं एकदम बॉटम ऑफ द चार्ट पे, एकदम बॉटम ऑफ द चार्ट पे चले जाते हैं. अगर सिर्फ इन्हीं दो को कंपेयर करा जाए, दिस बॉटम एंड दिस बॉटम, तो यहाँ पे ये कितना है बॉटम के साइड पे? 16970, और यहाँ पे ये x जहां से शुरू किया है 16990, राइट? और ये x जहां पे कंप्लीट हो रहा है, दैट इज व्हाट वैल्यू? 1710. तो अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट करें कि यहाँ का बॉटम जो बना है, तो दैट इज 16970, और यहाँ का ये जो बन रहा है ना, दैट इज 17010. कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ? 40, राइट? और अगर हम इसकी स्टार्ट से बात करें, तो पहले ये पॉइंट करना था, फिर ये पॉइंट, तो टोटल 60 पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ. दिस इज नथिंग बट 20 क्रॉस 3. 20 3s are 2 3s are 6, 60 पॉइंट्स. तो हर 60 पॉइंट्स के रिवर्सल पे, अगर मार्केट ने बॉटम बनाया है, उसके 60 पॉइंट्स के रिवर्सल पे ही नेक्स्ट एक्स मार्क करा जाएगा. तो इफ यू गेट इट, रिवर्सल का साइज हमारा कितना हुआ? 60 पॉइंट का निफ्टी में रिवर्स का ट्रेड होना चाहिए, राइट? तो उसके बाद वो बुलिश मूव कंसिडर करा जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर तो पूरा समझ में आ जाएगा. सबसे पहले जब x और o को हम मार्क करते हैं, यस आई विल रिपीट माई सेल्फ, जब हम x और o को मार्क करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है? 20. 20 इज द फर्स्ट थिंग. सो 20 इज व्हाट? 20 इज ईच बॉक्स का साइज. हम लोग पता है पुराना वो ग्राफ पेपर यूज करते थे, ग्राफ पेपर में कभी तो 5 10 15 की रेंज बनाते थे, कभी 10 20 30 की बनाते थे, कभी 50 100, अगर डेटा बहुत ज्यादा होता तो 50 100 150 200 की रेंज बनाते. दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द साइज of the box that we are trying to take. So here similarly, समझो कि चार्ट आपका एक ग्राफ पेपर है, उस हिसाब से 20 is the amount, जो पॉइंट मूवमेंट बोलते हैं ना, 20 days नहीं श्रीनिवासन, वो दैट इज 20 पॉइंट्स जो होते हैं ना, कि निफ्टी अगर जैसे 17,100 चल रहा है, तो 17,120 मतलब 20 पॉइंट का मूवमेंट है, दैट इज दिस 20 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट इज द फर्स्ट वन, 20. एंड 3 इज के कितने अमाउंट का रिवर्सल आना चाहिए कि मैं उसको बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश मूव कंसिडर करूं, ठीक है? तो यहाँ पे बेरिश से बुलिश मूव कंसिडर करने के लिए 20 क्रॉस 3 हमने लिया, मतलब 60 पॉइंट्स का. अगर निफ्टी ने 17,100 पे बॉटम बनाया,
तो उसके बाद 17,160 जब आएगा तब हम कंसिडर करेंगे कि निफ्टी बुलिश हुई है. इज इट क्लियर नाउ? Okay, can we have a quick thumbs up? Yes, no, yes, no. Yes, yes, yes. Okay, understood. Thanks. Yes, great, great. All right, awesome. So अगर ये हो गया तो हमने आधी जंग जीत ली. We are done and through with half of the portion. This is what is your box and reversal. अब इसमें साइज कैसे पता चले? Right? Very nice one, Datish. साइज कैसे पता चले कि हमें कितना वहां पे ट्रेडिशनल में 20 कितना लेना है, 3 लेना है, क्या लेना है, राइट? सो 3 इज अ स्टैंडर्ड मेजर के 3 पॉइंट्स ऑफ बॉक्स रिवर्सल जनरली लेते हैं, बट ज्यादातर देयर इज अ बेंचमार्क रूल ऑल्सो. ठीक है, बेंचमार्क रूल में क्या होता है कि आपका जो भी एसेट पे आप कर रहे हो, निफ्टी पे कर रहे हो, रिलायंस पे कर रहे हो, गेल पे कर रहे हो, 1 to 2%, आप 2 to 3% भी ले सकते हो. ऑन सेफर साइड हम लोग 2% ले लेते हैं. कि 2% का मूव आया डिपेंडिंग ऑन एसेट क्लास. निफ्टी में तो 1% का मूव इज ऑल्सो बिग इनफ के 170 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है वहां से, है ना? तो आप वो ले सकते हो. क्लासिकली आप 2 to 3% का भी ले सकते हो. वील जस्ट गो डाउन टू द, सो कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आया. द नेक्स्ट इज आपका बॉक्स साइज एंड रिवर्सल. ठीक है, तो बॉक्स साइज हमें समझ में आ गया है. अब बॉक्स साइज में हमें क्या करना है, कितने का बॉक्स साइज ले. सो आप 2 to 3% का ले सकते हो, 1% का भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है. ओके, और वो उसका क्या मतलब है, दैट आई विल जस्ट शो यू. कि जब हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं, है ना, इसको हटा देते पहले. निफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप देखो इसके अंदर कितना डिस्टॉर्शन दिख रहा है डेटा में. बहुत ही रेड ग्रीन ऑलमोस्ट कैंडलस्टिक जैसे ही बन गया मेरा चार्ट, राइट? तो इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा इफ आई एम नॉट यूजिंग इट. तो आप इसको क्या करो, ट्रेडिशनल में जाके यहाँ पे जाओ, सेटिंग्स में जाके इसका अमाउंट चेंज कर दो. हमें क्या लेना है, 1% लेना है. अभी हम फिलहाल 1% लेके चल रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, 1, यहाँ पे मैंने लिया 65 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं. चलो 170, है ना? और निफ्टी में 2% की मूव बहुत होती है, तो कंसिडर कि भाई रिवर्सल यहाँ से आया है तो 2% का 2 बॉक्स का रिवर्सल ले लेते हैं. मतलब हर एक एक्स या ओ 170 पॉइंट में मार्क करा जाएगा. वंस वी हैव, लेट्स से निफ्टी करंटली इज ट्रेडिंग एट 17,200. वंस वी रीच बिलो 17,200 minus 170 points, which is 17,030. 17,030 रीच करके नीचे होने के बाद, मतलब जैसे ही 17,020 आएगा तो एक और क्या मार्क करा जाएगा, फॉर बुलिश, फॉर बेयरिश ओ, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो, राइट? सो ओ मार्क करा जाएगा एंड दैट विल कंटिन्यू. फॉर रिवर्सल हियर वी आर टेकिंग 2 मीन्स 2% की अपमूव आनी चाहिए. मतलब अगर बॉटम बनाया 17,030 पे तो प्लस आपको 340 पॉइंट्स करना है. 17,370 के ऊपर अगर निफ्टी मूव करेगी तो ही देयर विल बी अ नेक्स्ट एक्स मार्क कि भाई बेरिश मूव खत्म हो गया, बुलिश मूव शुरू हुआ है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे 170 और 2 ले रहे हैं. ओके, यू सी द अमाउंट ऑफ डेटा. 1992 से कितना डेटा आ रहा था, नाउ द डेटा इज रिड्यूस्ड, राइट? See, now what is it showing currently? What is happening? हमें अभी तक बॉटम से 340 पॉइंट्स का अप मूव नहीं मिला है. So we are still on the bearish side. We are not on the bullish side. Now the question is, but box size how to consider? वही हमने 2 to 3% लिया ना, कि 2% का आप ले सकते हो, 1% का ले सकते हो. Index being it's so volatile, that's why I've taken it 1%. If I want to go stock specific, I will take it up as 2%. Right? In index, 2% of a move is considered as a reversal. So that is totally on your personal risk appetite कि आपको कितने परसेंट की मूव को यहाँ पे कंसिडर करना है. आपका रिस्क एपेटाइट कितना है? मेरा 5% का भी रिस्क एपेटाइट हो सकता है कि भाई मेरे को अगर 5% भी स्टॉक गिर गया, आई एम फाइन विद इट, आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू इट, राइट? और 5% के अंदर अगर मेरे को
चेंज करना है तो आई कैन डू दैट थिंग. यस, दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी स्किल. हर एक स्टॉक का भाव अलग है ना, तो वी विल हैव टू कीप इट डिफरेंट फॉर एवरी स्टिक. अगर इसी डेटा पॉइंट को मैं यहाँ पे रिलायंस पे डाल दूँ, राइट, तो रिलायंस पे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे, एंट्री एग्जिट सिग्नल कुछ भी नहीं मिलेगा. रीजन बीइंग रिलायंस का प्राइस ही कितना है? 2200 का प्राइस है. 17,000 को 2200 के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट. तो इसी हिसाब से आपको हर एक का बॉक्स साइज अलग रखना पड़ेगा. अब रिलायंस का यहाँ पे 22 का है, तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज के स्टॉक में माय एपेटाइट इज, मैं 3% की मूव के साथ ठीक हूँ, तो आई एम टेकिंग हियर एज 20. सो 60 पॉइंट्स का मूव अगर रिलायंस में आया तो ही इसका एक रिवर्सल माना जाएगा. सो यू सी द आई काइंड ऑफ एंट्री एग्जिट्स आई गेट, राइट. इसकी लास्ट यहाँ पे सेल साइड की आई थी यहाँ पे 2696 पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बाय आया, फिर सेल आया, और अभी फिलहाल मुझे सेल कहाँ पे मिला है? 2383 पे. इफ यू कंसिडर रिलायंस का, हम अगर चार्टिकली कैंडलस्टिक में भी देखते हैं तो 2350 के नीचे ब्रेकडाउन मिल ही रहा था. 2383 के ऊपर यहाँ पे भी सेल का हमें मिल चुका है, और उसके बाद वी आर कंटिन्यूइंग फर्दर on the downside. जब तक के नया X नहीं बने, we will be trading on the short side. Yes, so your box size and your will be dependent upon the risk appetite you want to have for the time horizon you want to invest. अगर रिलायंस का यहीं पे मैं बात करूं कि मेरे को I am still comfortable, हम लोग जनरली लेते हैं ना, इन्वेस्टर्स का क्या होता है, 20% पे तो और ऐड करने के लिए वी आर लाइक ठीक है चलो 20% पे और ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं 2220 का 20% गिनूं, 2200 ले लेते हैं, राइट. तो उसका अगर गिने तो 440 पॉइंट्स होता है, राइट. 440 डिवाइडेड बाय 3 का बॉक्स रिवर्सल हम ले रहे हैं तो 150 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं 150 का ले रहे हैं हम, राइट, तो आपको रिलायंस के अंदर सेल यहाँ पे मिल गया था जब 2500 की रेट चल रही थी. उसके बाद नीचे इसका फर्स्ट बाई कहाँ पे आया था? 2020 में आया था, जहां इट वाज रनिंग अराउंड 1060 पॉइंट्स. 1060 पॉइंट्स के पे बाई का आया था, एंड द नेक्स्ट सेल केम एट 2550, राइट. सो यू कैन सी you have already doubled up your money and the time period was very less. Similarly, ये ज्यादा काम कब आता है? In stocks like this, right. It is not showing any data क्योंकि box size ही पूरी change करनी पड़ेगी. We will change the box size over here. 20 पे डालने पे थोड़ा भी तो डेटा मिला, राइट. नाउ हमें पता है कि स्टॉक ही 100 रुपए चल रहा है, करेक्ट. तो इसका हमें कितना रखना चाहिए? कैन एवरीबॉडी पुट इट अप? इसका बॉक्स साइज कितना होगा? व्हेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 110, व्हाट शुड बी द आइडियल बॉक्स साइज दैट आई शुड बी टेकिंग अप? 10, 5 ले, 3 5s are 15. 15 is good amount of चेंज मूव. हम लोग 15% की बात कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे, है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑलरेडी हमको इसका एंट्री सिग्नल मिल गया था 90 पे, राइट. आफ्टर 90 करंटली वी आर एट 110. अब यहाँ पे देखो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स 110 पे इसने आके रिवर्स करा है, राइट. सो इफ आई एम अ न्यू पर्सन, व्हाट शुड आई डू? आई शुड टेक एंट्री अबव व्हेन अ न्यू एक्स इज फॉर्म्ड. तो मुझे नए एक्स के ऊपर इसके अंदर फ्रेश एंट्री करनी है. अभी फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते हो आप. So this brings me to the next topic of the day, which is your patterns, right? तो इसके भी अंदर आपको bullish bearish pattern use कर सकते हैं. What time frame? हाँ, now again Ankit, a very good question. At the start of the session only हमने बात करा था that these are noiseless charting. यहाँ पे time का dimension ही नहीं है. यहाँ पे there is only one dimension which is your prices. तो इसमें टाइम का तो कंसिडरेशन ही नहीं होगा. जब भी आपको प्राइस मिले आप एंटर कर लो, जब भी आपको प्राइस मिले कि भाई बुलिश से बेरिश हो गया आप एग्जिट कर लो, राइट. सो देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन इन दिस थिंग. यू कैन trail your moves and multiply your money as much as it is going. All right. So I hope this much is clear to everyone. Quickly we can have a thumbs up.
वॉल्यूम इज समथिंग दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग ओवर हियर कि कितनी वॉल्यूम पे कितनी मूव आई है. यस, ट्रेडिंग व्यू में टाइम का है ऑप्शन. आप 30 मिनट्स पे करो तो 30 मिनट्स पे भी आपको नहीं मिलेगा ये यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर में, राइट. द टाइम फ्रेम टेकन इज डेली. राइट, अब डेली टाइम फ्रेम पे ही इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ही इसको करना है. कोई आप छोटी वाली टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है. 5 मिनट्स पे 10 मिनट्स पे बहुत सारी डिस्टॉर्शन होती है. हम लोग नॉइजलेस स्टार्टिंग क्यों करें? क्योंकि हमको आवाज निकालनी ना. वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ओवर हियर, राइट. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नॉइजलेस स्टार्टिंग. पैसे जब इतने अच्छे से बढ़िया से बढ़ रहे हैं तो हमें क्यों मतलब इतनी फ्लक्चुएशन के अंदर जाना है, राइट. Because we are looking at investment, that's why we are looking at noiseless charting as a method, right. So अभी तक का सबको समझ में आया है? I am yes, understood. मैम चेंज एक बार फिर से समझा दो कैसे स्टॉक का डिफर होता है. रवि एक सिंपल सा थंब रूल बना लो, बहुत ही सिंपल रहेगा स्टॉक के लिए कि 3 to 5% अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव है आपका तो 3 से 5% का मूव पकड़ लो कि यहाँ पे आपने जो भी 1% है, जैसे इसका प्राइस चल रहा है गेल का 110 है ना, तो 110 पे मेरा 1% क्या बनता है, एक 1 रुपी ओवर हियर 1.1. 3% की मूवमेंट पे मेरे को चेंज करना है तो फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव आप वो डाल लो. आप इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो हमें जब भी कोई 10-15% का डिप मिलता है तब हमको एंटर करना है. तो यहाँ पे 3 5 15 ले लिया मैंने कि यहाँ पे 15 रुपए की डिप आएगी तभी मेरे को इसको बाय करना है कि 15% का मूव हुआ तो दैट टाइम आई विल एंटर इनटू. सो बोथ ऑफ दिस विल बी डिफरेंट. इफ यू आर लुकिंग अप एट फ्रॉम लाइक वेरी क्विक एंट्री एग्जिट काइंड ऑफ अ थिंग, 3% का मूव पकड़ लो तो आप 1% की बॉक्स साइज ले लो एंड 3 का रिवर्सल ले लो. एंड इफ यू आर लुकिंग अप एट इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, आप अगेन रिवर्सल 3 का रखो, आप बॉक्स साइज वहां पे जो बनती है वो आप 5% की लो तो आपको 15% का मूव हो गया व्हेन यू आर लुकिंग एट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप इज so we get to see the price peaks and valleys. Yes, exactly. So that's what we are going to next. कि इसके अंदर भी price patterns होती है. There these are some 3 4 7 8 bullish patterns, 8 bearish patterns. दोनों ही same है. सबसे पहला बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे हमें इसके अंदर जो move है ना, one second. सो यहाँ पे सबसे पहला मूव क्या है इसका कि हमें जैसे ही ये 2 हाई बनी है यहाँ पे, राइट, उसके बाद जैसे ही थर्ड उसके ऊपर का बना तो वी बाय इनटू इट. दिस इज द फर्स्ट पैटर्न के आपके 2 लेवल्स बने उसके ऊपर. जैसे गेल का चार्ट हमने अभी देखा ना, सिमिलरली गेल में सब 110 पे बन रही है हाइट्स, यहाँ पे ये रहा, राइट, सब यहाँ पे 110 पे बन रही है. जैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे एक्स बनी then further move is confirmed, we will buy into it, right. अब जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं बना, there is constantly upward price और फिर आपने तब जाके पॉइंट एंड फिगर देखा तो आप क्या करोगे, तो जैसे ही आपका प्रीवियस यहाँ पे जो स्विंग हाई है उसको क्रॉस करा, राइट, प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने के बाद यू बाय इनटू इट. द थर्ड इज योर ट्रिपल स्प्रेड ट्रिपल टॉप. इसमें क्या हुआ, एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, तीसरा यहाँ पे नीचे बना, उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बुलिश मूव फर्दर एक्सटेंड नहीं हुई ना. फ्रेश बाइंग करनी है तीसरे वाले टॉप के ऊपर कंसिडर करेंगे, वी विल बाय ओवर हियर. देन यू हैव अ लाइन कि भाई ऐसे सिमेट्री 45 डिग्री लाइन, ऑलवेज रिमेंबर 45 डिग्री लाइन हमने बनाई, उसका ब्रेक मिला यहाँ पे तो वी बाय. आप देखो प्रीवियस स्विंग के पास यहाँ पे मिलेगा, दैट इज वेयर यू बाय ओवर हियर. देन यू हैव अ ब्रेकआउट कि प्राइस चलते जा रही है ऊपर ही चलते जा रही है. अब कैसे लेना, 45 डिग्रीज का लाइन वापस बना लो, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला, देन वी बाय इनटू इट. सेकंड वन इज डाउनवर्ड, यहाँ पे सेम लाइन नीचे, यू ब्रेक एंड यू एंटर.
दिस इज व्हाट योर गेल चार्ट इज। यहाँ पे ऐसे ही बनते जा रहा है, जैसे ही ब्रेक करा बाय। इन शॉर्ट हर एक पैटर्न का अगर आप यू वांट टू टेक अ जिस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पैटर्न्स, देयर इज ओनली वन जिस्ट, ओके। Previous x should be broken. The highest previous x has to be broken. A new x has to be formed above the previous x. That is only when you are going to enter into a new long position for the same. Similarly, on the bearish side, ये bullish नहीं है, ये है हमारा bearish, ठीक है। This is our bearish move. जहां पे भी नीचे की तरफ में ब्रेक हुआ, again we sell over here, again sell, again sell नहीं तो आप exit का सिग्नल इसमें कैसे रहेगा? exit बहुत इजी है, x के बाद जैसे ही नया O बनाना exit कर लो, ठीक है, because the price have started moving. हाँ, short side की trades लेनी है तो this is the way कि आपका जब भी नीचे resist जो support बन रहा है उसके बाद swing को break कर दिया तो you are moving out of this thing. Is it clear now, guys? Any questions so far? We will take up some questions, right? And next what we will see is how do we calculate price targets based on this one. And I'm just launching a small poll over here क्योंकि हमने काफी basic side देख लिया है. So let's see if all of you would be using this. नहीं श्रीनिवास, डे ट्रेडिंग के लिए मैं इसका सजेशन नहीं देती हूँ वेरी ऑनेस्टली। आप इसको इन्वेस्टिंग के लिए यूज करिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, इट इज गुड, बट फॉर डे ट्रेडिंग दिस इज नॉट सजेस्टिव क्योंकि इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ओनली बेस्ड ऑन दिस थिंग, ऑप्शंस तो छोड़ ही दीजिए, बहुत दूर की बात है। फ्यूचर्स को ही लेके अगर कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में ही इसका बहुत ही सारा आपका जो रिस्क होता है बढ़ जाता है क्योंकि आप एम्पलीफाई कर देते हो ना, आप बॉक्स साइज जिस हिसाब से ले रहे हो उस हिसाब से आपका वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पर्सनली नॉट सजेस्टिव टू यूज फॉर डे ट्रेडिंग। ज्यादातर कोई भी नॉइजलेस चार्टिंग मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर योर इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, ओके। You can try downsizing the box and use it. That's not एक्सपेरिमेंट तो हर कोई कर सकता है, बस पैसा बनना चाहिए। मार्केट का रूल क्या है, आपका रूल अलग, मेरा रूल अलग। द बेस्ट इज के हर किसी के लिए यहाँ पे पैसा बनना चाहिए। अगर पैसा बन रहा है तो यस वी आर गुड विथ इट, इफ नहीं बन रहा है तो यस लेट्स स्टिक टू द क्लासिकल मेथड्स, राइट। So you can try. अगर वो successful हो तो please let me know. I would also love to see it कि भाई box size को अगर change करके we are able to use it and how does it work and all. And guys one more thing, अगर आपको doubts है ना कोई भी तो आप क्या कर सकते हो, आप ना mail कर सकते हो अपने questions, right? You can mail your questions at any point in time to support@sasonline.in. And you can ask your questions there as well, right? So it is support@sasonline.in. You can ask your questions there and you can always tag me up on your social media and you can ask me the questions there as well कि application में कभी कुछ problem आ रही है, समझने में कुछ problem आई तो we can do that thing. Now quickly ये patterns सब हमने identify कर लिया, target calculation पे चलेंगे तो फटाफट से let's have some of your favorite stocks. 15 minutes है अपने पास. We will see this practically and we will also look at your stocks for this one. मेरी तरफ से पर्सनली मैंने कुछ स्टॉक्स बताई है, जैसे ठीक है यूपीएल को ले लेते हैं. देयर इज वन
क्वेश्चन अबाउट यूपीएल। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूपीएल का चार्ट लेंगे। Yes, we will be doing that thing. इसीलिए मैंने स्टॉक्स पे शुरू करा विजय, दैट वी विल सी ऑन बॉक्स साइज आल्सो। अब यूपीएल यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। 700 की प्राइस रेंज चल रही है उस पे, तो व्हाट शुड बी माय आइडियल बॉक्स साइज फर्स्ट। तो यहाँ पे 1% का मैं बॉक्स साइज ले लेती हूँ। मैंने 7 लिया। मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे चेक कर रही हूँ। आई एम नॉट चेकिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर चेक करना है यहाँ पे, तो हमारे लिए 15% तक का मूव आ जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 105 पॉइंट्स बन जाते हैं, डिवाइड बाय 3, तो 35 का बॉक्स साइज बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 35 का बॉक्स साइज नहीं ले रही हूँ। Just for a better understanding, I am taking it up as 7, which is 1% of the price, and my reversal is 3, which is 3 sevens at 21, which is 3% of a counter move from the bottom. तो मुझे बताएगा कि अब next move क्या हो रहा है। Now we click on OK, and अभी फिलहाल क्या हो रहा है UPL? UPL is on the downside. Overall, what do you see over here? This is the previous वाला low. उसके नीचे अगर नेक्स्ट बना तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा ऑन द डाउन साइड, एंड वी विल गो शॉर्ट ऑन दिस वन। इज इट क्लियर? अब इन दिस केस व्हाट शुड बी माय स्टॉप लॉस, राइट? तो हमने इसी को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। जैसे ही नया एक्स बनना शुरू हुआ, योर स्टॉप लॉस इज हिट एंड यू शुड एग्जिट आउट ऑफ द सेम। एज फार एज पैटर्न्स आर कंसर्न, आपको पैटर्न्स भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, राइट? यू कैन सी कि यहाँ से डाउनसाइड पे ही मूव्स आ रही है कॉन्स्टेंटली। हियर इवन वी वर सीइंग द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज नया ओ बनने पे। दैट्स अ कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स। ऑलराइट, होप इट इज क्लियर सो फार। किसी को कुछ भी डाउट्स आ रही है क्या? बिकॉज आई एम नॉट सीइंग टू मेनी स्टॉक क्वेश्चंस कमिंग इन। Flag pattern is showing, yes, we had this thing over here, यहाँ पे बना था, उसके बाद जैसे ही इमीडिएटली ब्रेक करा नीचे, बट फ्लैग पैटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था, वो आपको ब्रेकआउट लेवल कितने पे मिला? ये हमारी राइजिंग चैनल है। हमने देखा ना एक बहुत ही पैराबोलिक अपमूव चल रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे दिस वाज द प्लेस, यहाँ से चल रहा था एक पैराबोलिक अपमूव टाइप ही चल रहा था कॉन्स्टेंटली, है ना? तो उसका ब्रेकआउट हमें कहाँ पे मिला? एक बार यहाँ पे मिला था जो कि सस्टेन नहीं करा, उसके बाद वापस यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे हमारी एंट्री लेवल क्या बनी? 680, 687 के पास एंट्री मिला, और देन एग्जिट वाज एट 840। तो अगर सिंगल को भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं विद 3% ऑफ अ चेंज मूव, है ना, तो पैराबोलिक अप मूव्स भी जो इसके अंदर आती है वो भी हम लोग इसके अंदर ले पा रहे हैं, जहाँ पे 686 से हमने 840 तक का मूव देखा, राइट? तो दैट इज ऑलमोस्ट हाउ मच? That is almost your good amount of 80% of an upside move, right? Yes, Srinivas, you can do that thing. ये भी एक strategy है, मतलब keeping long term investment at a side and looking at only short term swing trading. जैसे ही X और O बनना शुरू हुआ, you can go for your buy and sell side. That's absolutely right. You can do that thing as well. But that like requires a time commitment, क्योंकि आपको constantly monitor करना पड़ेगा। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो कि भाई रोज सुबह देख लिए टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स कौन से हैं, उसके अंदर देख लिया कि किस तरफ का स्विंग मूव आ रहा है, या फिर आपके देख लीजिए आप एक बार एंड ऑफ द डे, या फिर प्राइस वॉच लिस्ट में देख लिए वेयर यू हैव सीन दी हाईएस्ट गेन्स और हाईएस्ट लूजर्स कमिंग इन। तो वहां पे क्या बॉक्स मूव रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आज के सेशन की ही हम बात कर रहे हैं, राइट? तो द टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स टुडे, वन वाज आवर HDFC। तो लेट्स सी HDFC में क्या हुआ है, राइट? ओवरऑल नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैच से शुरू करेंगे वापस से, सो वी ऑल नो अगेन, बॉक्स साइज वाला डाउट किसी को नहीं रहे। सबसे पहले स्टॉक का मूवमेंट कितना है, प्राइस कितना है? तो 1500 के अराउंड की रेंज में है। तो मेरा 1% यहाँ पे कितना बन जाएगा? 15 का। 15 3 45, मतलब 45 पॉइंट्स की मूव आई तो इसके अंदर एक बुलिश मूव कंसिडर करा जाएगा।
ना 3% रिवर्स नहीं हुआ है बॉटम से, इसका जो बॉटम बना वहां से अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, मैं HDFC का कैंडलस्टिक चार्ट कर देती हूँ सेम डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। HDFC बैंक का यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट कर दिया और यहाँ से ये अपमूव कंसिडर कर रहे हैं, फिर भी हमें बॉटम से जो अपमूव मिलना चाहिए डेली पे, दैट इज नॉट गेटिंग अ अपमूव ऑफ कंफर्मेशन ऑन पॉइंट एंड फिगर। सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव आपने यहाँ पे भले ही लॉन्ग पोजीशन ली है, बट यहाँ पे ये चीज आपको कंफर्म नहीं मिली है। उसके अलावा बेटर देन कैंडलस्टिक इसलिए भी है क्योंकि आपको देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, वहां तक का ये भी बाउंस आया है। We'll see tomorrow's session and then we will decide on further move up forward. So this is one thing which is very different in both the charts. ठीक है। यस एब्सोल्युटली, कोविड के बाद के मूव्स तो बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर, इनफैक्ट अभी के मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब जैसे ये तो हमने HDFC की बात करी बिकॉज इट्स हाईली ट्रेडेड, मार्केट कैप ज्यादा एंड एवरीथिंग। लेट्स लुक एट अ वेरी स्मॉल स्टॉक लाइक देवयानी, ठीक है। दिव्यानी इंटरनेशनल पे चलते हैं, आज अमंगस्ट द टॉप ट्रेडेड है। अगेन 150 का प्राइस चल रहा है, तो 15,345 का तो बॉक्स साइज इसके अंदर काम नहीं करेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, बॉक्स साइज चेंज करना है। इसको हम क्या कर देंगे 1.5, तो ₹1.5 इसका हो गया मेरा 1% मूव एंड 3s are 45 एंड आई विल टर्न इट ओके। तो अब मेरे को ये चार्ट मिल गई दिव्यानी की। सिंस द स्टार्ट इसके अंदर क्या चल रहा है, आज टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में है। ओवरऑल इसका मूव जो रहा है, हमें क्या मिला है, डाउन साइड का मूव है। ट्रेंड को ऑन द बॉटम साइड कंटिन्यू करेगा ये चीज एंड इट विल गो फर्दर डाउन। इनफैक्ट ये जो इसके बन रहे थे लोज, उसको भी क्रॉस करा है ऑन द बॉटम। दिस इज ऑल्सो क्रॉस्ड ऑन द bottom, so we are continuing the further down move on the same over here, right? Great. So let's look at some of the questions, क्योंकि questions बहुत सारी आ रही है इसके अंदर। Any sort of divergences नहीं विजय, इसमें divergences कोई इंडिकेटर किसी चीज की जरूरत नहीं है। All you have to do is just look at the X and O's, कोई divergence कुछ भी इसमें काम नहीं आएगा। So on 3% it will change from X to O or vice versa and keep drawing. Yes, Krimesh. So 3% की reversal रखिए, तो 3% का counter move will create a new X and O either ways. अगर O's चल रहे हैं मतलब we are on the bearish side, तो 3% का up move होने के बाद उसके अंदर एक हमें next bullish move के OX देखने को मिलेंगे, right? Then TradingView, you can try putting up an alert on this. We will take one more query, USD INR पे आ रहा है, तो we will take up that one. यही से लेते हैं USD INR, right? USD INR कितना चल रहा है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल अपना सेटिंग्स ही पूरा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो वही चेंज करना है पॉइंट, मतलब यूएसडी आईएनआर में तो मुझे लग रहा है 3% का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। यू विल हैव टू चेंज योर रिवर्सल बॉक्स आल्सो एज 1 एंड यू विल हैव टू चेंज योर बॉक्स साइज आल्सो एज 0.8। पॉइंट ले ही नहीं रहा है, 1 का ही लेना पड़ेगा हमें, तो ₹1 का मूव यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा कि बहुत ही छोटे पे तो आपको मतलब I don't think you will get much of an information out of this, right? All you can see over here suggestive is that soon as we are moving above this, a new one is formed, which is like 83 के ऊपर अगर आपको मिल रहा है 84, then further upside momentum will continue, but currently we are still on the bullish side of USD INR over here. Yes, Shrivans. Almost it will be like buy on low and sell on high. Smaller box size नहीं, जितना बड़ा box size होगा ना उतना आप बड़े moves को capture कर पाओगे, right? नहीं, मेरा free version है Datish. Mine is a free version. It's not a paid version.
so you can take it. ठीक है? I can say, Vic, that based on this point and figure, your ROI is some secondary. It is more of a wealth creation that you will be able to see if you're following this one, with a आप 3% का भी move को पकड़ के अगर कर रहे हो ना इसके basis पे trading, forget ROI, you will be into wealth creation after that. It is not only trading, it's more of an investing strategy. All right. विच इज जीरो के नीचे तो ले ही नहीं रहा है यूएसडी आईएनआर में किसी में भी, सो जीरो के नीचे नहीं जा पाएंगे, मिनिमम 1 तो रखना पड़ेगा आपको बॉक्स साइज. ठीक है, तो 1 के बेसिस पे दिस इज हाउ इट इज शोइंग अप. Now what is the box size to be taken for Reliance as per today's? As per today's नहीं लेना है. अभी क्या प्राइस चल रहा है उसका Reliance का, उसके बेसिस पे लेना है. 2200 का प्राइस चल रहा है, राइट? तो आप 20 का बॉक्स साइज ले लीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए. So there is nothing like to provide a particular box size and all. आपको राउंड ऑफ करके वहां से लेना है. ओके, 1%. Always take 1%. For trading, you take 1%. If you're taking up as investment perspective, take 3%. तो 3 5 मतलब आपका 15 का मूव हो जाएगा. 15% पकड़ के चलिए इन्वेस्टमेंट के लिए. ट्रेडिंग के लिए आप 1% लेके चलिए, तो आपको स्विंग मूव्स मिलेगी एंड you'll be able to capture. ठीक है? Vic, you can check out Twitter. You are available on Twitter. You can check and you can get in touch with me, and we can take up more questions. You can always message as on SAS as well. support@sasonline.in. They will also be able to help you. So that can work out either of the ways, right? Now, guys, we are ending up with today's session. So can I have a quick feedback from everyone? How did you like the session? Will you make the most of this information shared? And if you're looking up for further sessions as well, please put down what kind of topics you want me to talk on, and we will take up those topics as well in the coming sessions, right? All right. Thank you, CVS Rao. Thank you, Narendra ji. It's pleasure to have audience coming in every time for these sessions. It's really encouraging, and I always see Uma, Narendra ji, and Srinivas ji, couple of other names as well, always being there. So very, very heartful thanks to you guys for joining all these sessions. आप टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हो कि नेक्स्ट सेशन में which topics you want me to take, so we'll take up those as well. Datish, how do we change the settings? Simple है, यहाँ पे तीन you go scroll up over here on the page and there are 3 dots. There is one eye, उसके बाजू में 3 dots है, उस पे select करो and go to the bottom. There will be a nut bolt का वो जो bolt होता है ना, वो दिखेगा, nut वाला picture दिखेगा, settings. Go there and change it. Okay. Okay, all right. Thank you, guys. Thank you for joining in today. We will catch you up in the next session now. Thanks for watching video.